السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بچوں، آج ہم کلاس 6 اردو چیپٹر نمبر 3 شاعری کشمیر مہجور کے سوالات و جوابات کریں گے۔ تو چلیے کرتے ہیں۔ تو اس سبق کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے مہجور کا پورا نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے مہجور کا پورا نام پیرزادہ غلام احمد تھا۔ تو سوال نمبر جو دوسرا ہے اس سبق کا وہ ہے مہجور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے مہجور مونتری گام ضلع پلوامہ میں پیدا ہوئے۔ تو اسی طرح سے جو سوال نمبر تیسرا ہے اس سبق کا وہ ہے مہجور نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ تو اس کا جواب ہے مہجور نے ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی۔ تو اسی طرح جو سوال نمبر چوتھا ہے اس سبق کا وہ ہے مہجور نے پنجاب کا پہلا سفر کب کیا؟ تو اس کا جواب ہے مہجور نے پنجاب کا سفر 1905 عیسوی میں کیا۔ تو اسی طرح سے چوتھا سوال بھی ختم ہوا۔ سوال نمبر جو 5 ہے وہ ہے مہجور نے شعر گوئی کا باقاعدہ آغاز کب کیا؟ تو اس کا جواب ہے مہجور نے پنجاب کے سفر کے دوران شعر گوئی کا باقاعدہ آغاز کیا۔ تو اسی طرح سے 5 سوال ہوتے ہیں مکمل۔ اب جو سوال نمبر 6 ہے، چھٹا سوال ہے یہاں پر پٹواری بننے کے بعد مہجور کہاں کہاں رہے؟ تو اس کا جواب ہے پٹواری بننے کے بعد مہجور لداخ، کرگل، ہاجن، سوسیار، ہندوارہ اور آری گاہ میں رہے۔ تو اسی طرح سے جو سوال نمبر 7 ہے، 7واں سوال ہے وہ ہے مہجور کی چند کتابوں کے نام بتائیں۔ تو اس کا جواب ہے مہجور کی چند کتابیں مدرج ذیل ہیں۔ تو وہ مہجور کی جو کتابیں ہیں وہ نیچے ہیں، یعنی مدرج ذیل کا معنی ہے وہ نیچے ہیں۔ تو جو پہلی کتاب ہے وہ ہے لداخ کا سفر نامہ، اسی طرح سے پٹواری، حیاتی رحیم، کلام مہجور اور پیام مہجور۔ تو اسی طرح سے یہ 7واں سوال بھی کمپلیٹ ہوا۔ اب جو کوشچن نمبر 8واں ہے وہ ہے مہجور کا کلام کن زبانوں میں ترجمہ ہوا؟ مہجور کا کلام کن زبانوں میں ترجمہ ہوا؟ تو اس کا جواب ہے مہجور کا کلام بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے، جیسے انگریزی، ہندی اور اردو۔ تو اب جو 9واں سوال ہے وہ ہے ریاست سے باہر مہجور کہاں کہاں گئے؟ تو اس کا جواب ہے ریاست سے باہر مہجور پنجاب اور دہلی گئے۔ تو اسی طرح سے جو کوشچن نمبر 10 ہے وہ ہے 10واں کوشچن ہے وہ ہے مہجور نے وظیفہ کی پہلی قسط کب موصول کی؟ تو اس کا جواب ہے مہجور نے وظیفہ کی پہلی قسط 8 اپریل 1952 عیسوی پلوامہ کے سرکاری خزانے سے وصول کی، 8 اپریل 1952۔ تو اسی طرح سے یہ سوال بھی مکمل ہوتا ہے۔ اب آگے بڑھیں گے۔ سوال نمبر جو 11واں ہے وہ ہے مہجور کا انتقال کب ہوا؟ تو اس کا جواب ہے مہجور کا انتقال 9 اپریل 1952، یہاں پر ہے 9 اپریل 1952، یہاں پر میں بھول گیا ہوں 9، تو اس کو 9 لکھنا، 9 اپریل 1952 عیسوی کو
ان کے आबाई गांव मुद्रिगाम ज़िला पुलवामा में हुआ। तो इसी तरह से सवाल नंबर अब 12 है। जो 12वां सवाल है वो है महजूर का मज़ार कहाँ है? तो इसका जवाब है महजूर का मज़ार अथवाजन ज़िला श्रीनगर में है। तो इसी तरह से जो सवाल नंबर 13 है, सवाल नंबर 13 जो है वो है महजूर ने अपने कलाम में किन बातों पर जोर दिया है? तो इसका जवाब है महजूर ने अपने कलाम में इत्तेहाद, भाईचारा और वतन परस्ती पर जोर दिया है। वो कश्मीर की एक एक चीज़ से मोहब्बत करते थे। वो चाहते थे कि उनका वतन हमेशा तरक्की करे, जुल्म का खात्मा हो और इंसान की कदर कीमत बढ़े। तो इसी तरह से ये 13 सवालात मुकम्मल हुए। अब आगे बढ़ेंगे। अब जो आपके किताब पर दिया गया है सवाल नंबर जो 3 है वो है दर्ज झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो दर्ज झेल जो अल्फाज आपके किताब पर दिए गए हैं आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो उनको हमको जुमला बनाना है। तो जो पहला है वो है मुरवजा। तो इसको हमने जुमला बनाया है आजकल मुरवजा तालीम की तरफ ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसी तरह से जो दूसरा अल्फाज है जिसको हमें जुमला बनाना है तो वो है दरस लेना। तो इसको हम जुमला बनाएंगे किसी माहिर उस्ताद से दरस लेना अच्छी बात है। इसी तरह से जो तीसरा जुमला है वो है खुददारी। तो खुददारी पर हमें जुमला बनाया है वो है खुददारी इंसान को झुकने नहीं देती। तो इसी तरह से जो चौथा अल्फाज है जिसको हमको जुमला बनाना है वो है जो चौथा है वो है शार गोई। तो महाजिर को बचपन ही से शार गोई का शौक था। इसी तरह से मुलाजमत पर बनाएंगे जुमला आजकल सरकारी मुलाजमत मिलना मुश्किल है। तो इसी तरह से मकबूल पर बनाएंगे महजूर का कलाम बहुत मकबूल है। तो इसी तरह से तारीफ पर बनाएंगे अच्छे इंसान की हमेशा तारीफ होती है। तो इसी तरह से सियाह पर बनाएंगे सयाह पर बनाएंगे कश्मीर में हर साल सयाह आते हैं। तो इसी तरह से एजाज़ पर हम जुमला बनाएंगे महजूर के जनाजे को सरकारी एजाज़ के साथ हाथ अली भट्टू शायरों और सरकारी अफसरों के जुलूस में अथवाजन लिया जाया गया। तो इसी तरह से मुताला पर हम जुमला बनाएंगे मुताला करना मालूमात में इजाफा करता है। इस तरह से दिलचस्पी पर बनाएंगे सज्जाद को पढ़ने लिखने में दिलचस्पी है। मुताला पर बनाया। अब है अब जो आखिरी लफ्ज़ का हमको जुमला बनाया है वो है इज़्ज़त अफजाई। तो 1991 ईस्वी में रियासती हुकूमत ने इस अजीम शायर की इज़्ज़त अफजाई की। तो इसी तरह से सवाल नंबर जो तीसरा है वो होता है मुकम्मल जो जिनको हमको जुमला बनाना थे। अब जो सवाल नंबर जो चौथा है वो है सोचिए और लिखिए महजूर इसमें इल्म है क्योंकि ये उनका तखल्लुस है। महजूर जो है ये इसमें इल्म है क्योंकि महजूर इनका तखल्लुस है और वो इसे मशहूर है। और महजूर जो है वो अपने इस तखल्लुस से मशहूर है यानी महजूर से। इसमें इल्म इसको इस इस्म को कहते हैं यानी इसमें इल्म उस इस्म को कहते हैं जो किसी शख्स के खुसूसी नाम को ज़ाहिर करे। जो किसी शख्स का जो खुसूसी नाम होता है तो उसको वो ज़ाहिर करता है। तो इसी तरह से जो आपके
किताब पर दिया गया है ये सवाल। दर्ज झेल अल्फाज में इसमें इल्म तलाश कीजिए। तो दर्ज झेल अल्फाज में हमको इसमें इल्म तलाश करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है श्रीनगर, गालिब, पटवारी, आशिक, सैदा बेगम, मीर, कलंदर, वजीफ़ा, हयात, रहीम, खानकाही मावला, अथवाजन। तो इसका जो हमने जवाब लिखा है वो नीचे लिखा है, आप देखिए यहाँ पर। तो इसका जो जवाब है वो है जो इसमें इल्म है वो है गालिब, मीर और रहीम। इसमें इल्म है, तो इसमें जो है इसमें इल्म है वो है गालिब, मीर और रहीम। इसी तरह से सवाल नंबर जो चौथा था वो भी कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है यहाँ पर। तो अब हम बढ़ेंगे सवाल नंबर पाँच पर। तो सवाल नंबर जो 5 है वो है, यहाँ पर लिखिए, कुछ कश्मीरी शायरों के नाम लिखे, उनमें से कौन कहाँ रहता था। तो इनको हमको जवाब लिखना है। कुछ कश्मीरी शायरों के नाम लिखने, इसके साथ साथ वो कहाँ रहते हैं। तो दूसरा सवाल जो है वो है, कुछ ऐसे कश्मीरी शायरों के नाम लिखे जो अभी ज़िंदा हैं। तो दूसरा सवाल जो है वो है, कुछ ऐसे शायरों के हमको नाम लिखने जो अभी ज़िंदा हैं। तो इसी तरह से जो सवाल नंबर जो तीसरा है इस सवाल नंबर 5 का, वो है, अपने अल्फाज में महजूर के हालात ज़िंदगी पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है, आप देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ कश्मीरी शायरों के नाम लिखे, इनमें से कौन कहाँ रहता है। जो पहला सवाल है इसका हमने जवाब लिखा है। तो वो है, जो पहला है वो है डॉक्टर हामिद कश्मीरी, तो ये रहता है शालीमार में। इसी तरह से डॉक्टर फरीद परबती, ये रहते हैं वानाबाल, रावलपोरा। इसी तरह से डॉक्टर नज़ीर आज़ाद, तो ये रहते हैं कोयल, पुलवामा। इसी तरह से डॉक्टर शफीक सोपोरी, तो ये रहते हैं सोपोर में। तो इसी के साथ साथ इस चैप्टर के सवाल व जवाबात मुकम्मल होते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।